Hello students, once again you are most welcome here in this video. Myself Devesh Singh from LPM Public School. Dear students, as you have studied yesterday in this first video about India's size and location, today I am going to proceed the same chapter. Now let's see from the next page. First of all, you have to remember that India is the 7th largest country of the world. India is the 7th largest country of the world, as it has a land boundary of about 15,200 kilometers. Means India's total land boundary is 15,200 kilometers. And you can see here in this figure about India's condition. You see here in the first place here is Russia with a 17.09% total geographical area of the world. Means Russia has total 17.09% of the world's part or the world geographical area. Here on the second position Canada. Canada has also 9.98, means about to 10% area is captured by Canada. And now the third position is for USA. USA is about 9.62 means 9,62,000 square kilometer is area. The total area of Russia, Canada, USA and every country's area here has been mentioned in square kilometer, 9.62 lakh square kilometer. Now you can see just beside USA, China. China is also just similar with USA. Its total area is also 9,59,000 square kilometer. On the next position there is Brazil with a 8,51,000 square kilometer. And now the next is Australia along with 7,69,000 square kilometer. And the last position is of India with 3,28,000 square kilometer. So total you can see here India is in the 7th position in the matter of the land area. 7 largest countries of the world is India. You can check it here and you can understand the reality of this map and through this map. Now you see the total land boundary of India is 15,200 kilometers, and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6. मीन्स कहना है कि स्टूडेंट्स जो टोटल कोस्टल एरिया का लाइन आप ऐड करेंगे और उसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के भी कोस्टल एरिया के लैंड को ऐड कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 7,516.6. India is bounded by the Yangfold mountain in the northwest, west, north and northeast. और इंडिया जो है यंगफोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट की बात हो, चाहे नॉर्थ की बात हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात हो. साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ और
साउथ जो है ये अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड पे है, और इट बिगन्स टू टैपर एंड स्ट्रेंग्स टुवर्ड द इंडियन ओशियन व्हेन इट एक्सटेंड टुवर्ड्स इंडियन ओशियन। जब इंडियन ओशियन की तरफ एक विस्तार होता है, बढ़ता है, तो इट इनटू 2 सीज, ये 2 समुद्रों में डिवाइड हो जाता है इंडियन ओशियन। पहला अरबियन सी है, दूसरा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है ऑन इट्स ईस्ट, अपने इस ईस्ट पर ये 2 भागों में इस साइड में जाकर के डिवाइड हो जाता है। Look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. मतलब यहाँ पे जब आप ईस्ट वेस्ट की तरफ लैटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में, विस्तार के बारे में हम बात करेंगे, तो हमें हमेशा जो है ईस्ट वेस्ट साइड का जो एक्सटेंशन है ये नॉर्थ साउथ के एक्सटेंशन से हमेशा अधिक दिखाई पड़ेगा। Now, from Gujarat to Arunachal Pradesh there is a time lag of 2 hours. जब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच के हम टाइम को मैच करते हैं तो 2 घंटे का डिफरेंस क्रिएट होता है, 2 घंटे पीछे का टाइम जाता है। एंड हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard meridian for the whole country. Very important points है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे याद रखना है कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है कहाँ से लिया गया है। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है जो टाइम पूरे भारत के लिए जो है ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से इसको लिया गया है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इंडिया का मैप अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं कि लैटीट्यूडनल इंडिया का मैप जो है उस पर लैटीट्यूडनल जब आप जाएंगे तो लैटीट्यूडनल श्रीलंका को टच करते हुए, बिल्कुल श्रीलंका को टच करते हुए और सीधे ऊपर की तरफ ये स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम 82 डिग्री 30 मिनट्स की तरफ पास करते हुए आगे बढ़ी है। ओके, The latitudinal extent influences the direction of the day and night as one moves from south to north. जब साउथ से नॉर्थ हम मूव करेंगे तो लैटीट्यूडनल जब एक्सटेंस है प्रभावित दिखाई देगा, डे और नाइट का डायरेक्शन भी हमें वहाँ पे कुछ प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट हियर सम क्वेश्चन। Why 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। क्यों उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर को ही स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का टाइम सेलेक्ट किया गया? स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट दिस आंसर। एंड वाई इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ द डे एंड नाइट hardly felt as Kanyakumari but not in so in Kashmir? You have to write the answer of these 2 questions. Now India and the world is another heading. The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. इंडियन लैंड मास जो है इसका
सेंट्रल लोकेशन ईस्ट और वेस्ट एशिया में मिलेगा, जिसमें इंडिया जो है एक साउथवर्ड एक्सटेंशन, इंडिया का जो दक्षिण की तरफ जो विस्तार है एशियन कॉन्टिनेंट में, वो वहाँ पे साफ दिखाई पड़ता है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप, और इंडियन ओशियन के जो मार्ग हैं, इंडियन ओशियन के बारे में फिर एक बार आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। इंडियन ओशियन दो पार्ट्स में बटी हुई है, अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। तो इंडियन ओशियन का जो रूट्स है जो कि यूरोप के कंट्रीज से जुड़ी हुई है इन द वेस्ट साइड में, तो कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया के जो देश हैं वो प्रोवाइड ए स्ट्रेटजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत को एक सेंट्रल लोकेशन प्रदान करते हैं। मीन्स ये जो रूट्स हैं ये इंडिया को एक सेंट्रल लोकेशन का स्ट्रेटजिक सेंट्रल लोकेशन प्रदान करते हैं। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन में जो डेक्कन पेनिनसुला पाया जाता है ये क्या करता है, हेल्पिंग इंडिया टू, ये इंडिया को हेल्प करता है टू इस्टेब्लिश होने में क्लोज कांटेक्ट विद वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया से क्लोज कांटेक्ट होने में मदद करता है। और अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट अफ्रीका और यूरोप से भी, एंड विद साउथ ईस्ट और दक्षिण पूर्व से ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, ईस्ट एशिया जो है वो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ मूव करता है। तो नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन in on the Indian Ocean as India has, and indeed भारत के पास जितना अधिक कोस्टल एरिया का लेंथ जो है, इतना कोस्टल एरिया का लेंथ किसी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के पास नहीं है। एक यहाँ पे सबसे बड़ी फैक्ट है। अब it is India's eminent position in the Indian Ocean which justify the naming of an ocean after it, और ये काफ़ी इंडिया का एक एमिनेंट पोजीशन को सिक्योर करता है और इंडिया के इंडियन ओशियन को इंडिया के नाम पे भी जस्टिफाई करता है। तो अब यहाँ पे एक हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है स्टूडेंट्स कि सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्यूज कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 7,000 किलोमीटर। जब से स्यूज नहर जो है 1869 में बन गया, उसके बाद से स्वेज नहर के बनने के बाद यूरोप से भारत के बीच की जो दूरी है वो लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। मे बी देयर विल बी क्वेश्चन फॉर यू दैट विच canal reduced 7,000 kilometer distance between India and Pakistan, sorry India and Europe, which canal has been reduced 7,000 distance from Europe to India? At that time your answer will be Suez Canal. Suez Canal will be the canal which reduced by 7,000 kilometer. Okay.